everyone, welcome to my channel. So this video is all about the last 4 years. Yes, I've completed 4 years of my blogging, of my website. I have completed 4 years. 11th of August 2017, I have started my blog, my website www.vaishriupadhyay.com. So initially I was blogging about makeup, then beauty products. I was doing some makeup videos, how to do makeup, kind of like how to create a smoky eye look, how to create some color pop eye looks. So I have created many of the makeup looks. After that I started blogging about some other fashion videos, then lifestyle videos, then skincare, hair care, and many more such products. Eventually, since we are humans, so it's very obvious to get evolved, and it's very obvious to change our interest and or to shift our energies. Eventually my interest grew in traveling, and I have posted few travel videos, in fact solo traveling also. I have visited Udaipur, I have visited Manali, I have visited Shimla, and all these such places, some solo, some with friends. So I have made out that traveling is something that everyone likes. So I have decided to blog about travel. So while traveling, I faced few issues like what to travel, where to go, and what places to visit. So I wanted something that has all the information related to traveling. Although there are many documents available on the internet, there are many videos available on the internet, and there are tons of information available on the internet. And I also wanted to add to that information. So I wanted to create something of my own related to this travel genre. So I've come up with a travel series by Vaishri Upadhyay. Yes, since my website is vaishriupadhyay.com, I don't want my followers to go anywhere else. Everything I create on my own, and it has my own name. So it is Travel Series by Vaishri Upadhyay. Yes. So what it is, what all information it has, what it is all about, all the questions are going to be answered in this video, so stay tuned with me. So in one of my live videos before 2 days on FB, I have asked people to comment or DM their questions on my Instagram post, on my Facebook post, and I have received lots of them. So I've gone through all the questions and DMs that I have received and have summed up them in my diary. Yes. So I have noted down few questions, and that will be like, these are the questions I have written down, and I have summed up all the questions, and trust me, I have gone through all the DMs and I have summed up all the questions that will answer your questions about Travel Series by Vaishri Upadhyay. So to make it more clear, more understandable, I will switch to the language, Hindi and English. I think Hindi and English mix. So let's start with the question and answer series. So the first question is, what is Travel Series by Vaishri Upadhyay? So what is Travel Series by Vaishri Upadhyay? Travel Series by Vaishri Upadhyay is related at present. I don't know about the future, but at present it is related to completely about India. It is going to be completely about India, traveling to India. The foreigners, the Indians, everyone who is visiting, who is traveling to India, who is traveling in India, can refer this website, can refer this document. Sorry, Hindi. Can refer this document, can refer this website,
एंड उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। सो ट्रैवलिंग में इंडिया में अगर वो आते हैं, अगर कोई फॉरेनर बाहर से आता है या फिर इंडिया का भी कोई किसी और स्टेट में घूमने जाता है, तो किस टाइप की जगह पे उसे जाना चाहिए, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, कौन से होटल्स में रुकना चाहिए, कौन सी जगह पे अच्छा खाना मिलेगा, कौन सी जगह पे, like it's all about shopping, food, places to visit, and things to do, and many more things related to traveling. Okay, so travel series by राष्ट्रीय उपाध्याय जो है वो rashtriupadhyay.com जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा ब्लॉग है, उसके ऊपर एक सेपरेट टैब है. दिस इज नॉट अ सेपरेट वेबसाइट, दिस इज जस्ट अ सेपरेट टैब. तो एक टैब इंट्रोड्यूस किया है उस पर, जहाँ पर आप जाकर जैसे ही आप वहाँ पर ट्रैवल सीरीज बाय राष्ट्रीय उपाध्याय टैब ओपन करेंगे, यू विल लैंड अप ऑन अ लैंडिंग पेज. वहाँ से यू कैन नेविगेट टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वेबसाइट. ओके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. उसके बाद क्या है कि डेस्टिनेशंस हो गए, लाइक स्टेट्स. अगर जैसे आप राजस्थान आए, तो राजस्थान में अगर आप आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ घूमना है, जैसे कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़, जहाँ जहाँ भी आपको घूमने का है. तो मेजर सिटीज़ टू विजिट, जो उस स्टेट में मेजर सिटीज़ देखने लायक है ना, या फिर देखने लायक है, वो सारी उसमें मेंशन है. ठीक है, फिलहाल हम लोग सिर्फ स्टेट्स को कवर कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग यूनियन टेरिटरीज को भी कवर कर रहे हैं इसमें. देन वी विल कम टू सिटीज़. उसके बाद हम लोग सिटीज़ पे आएंगे. सिटीज़ में यू विल फाइंड, लाइक जैसे अगर आप राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, मतलब दीज आर सम प्लेसेस. देयर आर मैनी बट दीज आर सम प्लेसेस स्पेशली टू विजिट इन राजस्थान. ओके, फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद जब जयपुर में पाएंगे तो फिर जयपुर में आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे. तो जयपुर में आपने देख लिया जल महल, हवा महल. उसके बाद आपने नाहरगढ़, जयगढ़ फोर्ट, द आमेर पैलेस. तो इस टाइप के आपने जो भी है उसमें प्लेसेस टू विजिट अपने ऐड कर दी. ठीक है, फिर ये हो गई प्लेसेस टू विजिट. सेकेंड इज थिंग्स टू डू. अगर जयपुर में आप आते हैं तो देयर आर सम थिंग्स टू डू, लाइक यहाँ पर पास में हाथी गांव है, वहाँ पर जाके आप एलिफेंट्स के साथ यू कैन एंजॉय योर होल डे. अगर कोई विजिटर यहाँ पर जनवरी में आता है तो ही कैन एंजॉय द काइट फेस्टिवल, और इस टाइप से दीज आर सम थिंग्स टू डू. फॉर एग्जाम्पल, डिटेल में यू कैन फाइंड इट एवरीथिंग ऑन द ब्लॉग. ओके, उसके बाद फिर हो गया हमारा यहाँ पर शॉपिंग. तो शॉपिंग के लिए अगर आप जयपुर में आए हैं तो आपको शॉपिंग के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए. तो जैसे शॉपिंग के लिए अगर आपने यहाँ पर देख लिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गए अपने लोकल मार्केट. तो लोकल मार्केट के जो शॉपिंग है वो है बापू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, देन नाहरगढ़ रोड, और इस टाइप के कुछ लोकल प्लेसेस हैं. सम शॉपिंग मॉल्स, जैसे कि पिंक स्क्वायर इज़ वन ऑफ द फेमस शॉपिंग मॉल. एंड देन शॉपिंग मॉल जैसे कि पिंक स्क्वायर इज़ वन ऑफ द फेमस शॉपिंग मॉल. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ विजिट किए हैं, उनके पिक्चर्स आप इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं. पिंक स्क्वायर के फेसबुक पेजेस पे आप देख सकते हैं विद ऑल द ब्रांड्स अवेलेबल इन द मॉल. तो शॉपिंग का आपका हो गया. दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज फूड. तो यहाँ पर जब आप फूड के लिए देखेंगे तो यहाँ पर फेमस क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रावत कचौरी, तो वहाँ से आप कचौरी ले सकते हैं. लस्सी वाला है फ्रॉम MI रोड. कांजी वड़े जो हवा महल के पास में है. सेक्रेटरीट SBBJ के पास में दही वड़े. तो इस टाइप से आप फूड के बारे में वहाँ पे देख सकते हैं. देन कम्स होटल्स. आपको होटल्स में कहाँ रुकना है यहाँ पर. सो आई हैव कैटेगराइज दी होटल्स ऑन बेसिस ऑफ लाइक बजटेड, एवरेज एंड लग्जरी होटल्स. As per your traveling budget, you can decide on the hotels also. So आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी. देन फूड में क्या खाना है वो बता दिया, लेकिन अब कहाँ कहाँ खाना है वो भी इसमें
मेंशन रहेगा. फॉर एग्जांपल फेमस रेस्टोरेंट्स, फेमस कैफेज. सो देयर इज मैनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस टैब ट्रैवल सीरीज बाय राजश्री उपाध्याय. और ये टैब जो है ये रहेगा rajshriupadhyay.com वेबसाइट पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू ट्रैवल एंड ब्लॉग? यस, आई विल एंड आई विल नॉट. जो मेरा मानना है वो ये कि एक इंसान के लिए पूरी दुनिया घूमना दैट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एक्चुअली क्या होता है ना कि सबको घूमना फिरना पसंद है, सबको घूमना पसंद है, सबको लाइफ एंजॉय करना पसंद है, बट देयर आर मैनी एंड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें इन सब चीज़ों से रोकती हैं. सो दिस इज़ अ ब्लॉग, दिस इज़ माई रिसर्च, दिस इज़ माई travel, my personal experiences, this is my research, and this is the compilation of my research, my study, my personal experiences, and there are many people who contribute to my knowledge. And सबसे important, जैसे ही आप उस वेबसाइट को देखते हैं, आप उस टैब को देखते हैं, आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. आप प्लीज़ अपनी राय दीजिए, आप डीएम कीजिए मुझे फेसबुक पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आप कैसे भी करके मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए. लाइक ये नया रेस्टोरेंट खुला है, ये नया कैफ़े खुला है, ये भी इसमें ऐड होना चाहिए. साथ के साथ इसमें ये ट्रैवल प्लेस मिसिंग है, ये भी ऐड होना चाहिए. सी, ब्लॉगिंग क्या होता है ना, ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ वन टाइम डॉक्यूमेंट, इट इज़ एवर चेंजिंग. एंड इसीलिए जो ब्लॉगर्स होते हैं ये एक डायनामिक वेबसाइट बनवाते हैं ताकि हम लोग हमेशा कंटेंट को चेंज कर सकें, उसको अपडेट कर सकें. चीज़ें बंद होती हैं, चीज़ें स्टार्ट होती है, एंड इन सभी के साथ वैसे ही हमारा ब्लॉग भी चेंज होता रहता है. जैसे ही मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डेफिनेटली अपने ब्लॉग को अपडेट करूँगी. ओके, वेयर आई कैन फाइंड इट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. तो ये एक सेपरेट टैब है ट्रैवल सीरीज बाय राजश्री उपाध्याय, जो कि मेरी वेबसाइट rajshriupadhyay.com पे अवेलेबल है. आप जाके देख सकते हैं. इट इज़ लॉन्च्ड, इट इज़ लाइव एंड यू कैन विजिट इट. ओके, फिर व्हाट इन्फॉर्मेशन इट इज़ गोइंग टू हैव. इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी सारी चीज़ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी. शॉपिंग, फूड, ट्रैवल, प्लेसेस टू विजिट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज. ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही और धीरे धीरे अपडेट होगा. So when it is available, it is launched, it is live, you can visit it. Just visit www.rajshriupadhyay.com. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पर भी कहीं आ रहा होगा, इस साइड आई थिंक इस साइड नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा. Who can access the content? कौन कौन उस कंटेंट को देख सकते हैं? सभी, आप, मैं, कोई और, सभी देख सकते हैं. Is it free content or paid? It is totally free. This is just an information. It is a free content. It is all my research work. It is free content just for you. How we can access the information? Just log on to www.rajshriupadhyay.com. वहाँ पर एक टैब है ट्रैवल सीरीज बाय राजश्री उपाध्याय, उसको जाकर देखें और उस पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ओके, हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट. ओके, यस, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रीब्यूट की बात कही थी अपने लाइव वीडियो में, तो शायद उस वजह से ये क्वेश्चन आया है, हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट. तो ऐसा है कि वहाँ पर एक फीचर और है, ट्रैवल स्टोरीज, जहाँ पर सारे ट्रैवलर्स अपनी एक रियल ट्रैवल स्टोरी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए हैं. अब क्या होता है ना कि यू लाइक ट्रैवलिंग. फॉर एग्जाम्पल दे के बताती हूँ मैं. यू लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आप कहीं घूमने गए, उसके बाद क्या हुआ कि आपको लगा यार इसको लिखना चाहिए, इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, है ना, या फिर आपको लगा एक वीडियो बना लेते हैं, IGTV वीडियो बना लिया, फेसबुक बना लिया वीडियो, रील बना लिया, उसके बाद या फिर आपने उस पर फेसबुक लाइव कर लिया, IG लाइव कर लिया, तो यू डिसाइडेड कि यार इसको ना डॉक्यूमेंट करते हैं. डॉक्यूमेंट इज़ लाइक कि हमारी जर्नी, हमारी जो जर्नी है, हमारी ट्रैवलिंग है, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको अपने पास एज अ मेमोरी रखना, इधर इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, इधर इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और एनीथिंग. ओके, जिसे हम भविष्य में देख सकें. तो इस टाइप से अगर आपको लगता है कि हमें ऐसा करना है, लेकिन
अब हमें शौक तो बहुत है, लेकिन अब मैं साल में घूमने चाहता हूँ 1 या 2 बार, तो 1 या 2 बार घूमने के लिए मैं क्या वेबसाइट बनाऊंगा? ठीक है, मैं चाहता भी हूँ कि लोग मुझे जाने, मैं चाहता भी हूँ कि लोग मेरा वीडियो देखें, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या वेबसाइट बनाऊंगा अब? एंड वेबसाइट बनाना इज़ नॉट द ओनली थिंग ना, वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट को प्रमोट करना। सो इट्स बीन 4 years जो मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं। आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी, आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम, माई एनर्जी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उस सब को डॉक्यूमेंट करना, पिक्चर्स क्लिक करना। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एक वेबसाइट जो हमें इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अब आपको लगता है कि आपका भी कोई वेबसाइट होना चाहिए, आपको लगता है आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचे। अब क्या है कि rashmiupadhyay.com, it has a good number of visitors, thankfully. Now it has a good number of visitors, thankfully. In past 4 years I have worked on this. तो मेरे पास ऑडियंस है। अब क्योंकि आपको लगता है कि आपका कंटेंट लोगों तक पहुँचे, लेकिन एक वेबसाइट नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप अपना पूरा ब्लॉग, आप अपना पूरा कंटेंट या फिर अपनी वीडियोस वगैरह या फिर अपना जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ईदर योर ट्रैवल डायरी एंट्री, यस दिस इज ऑल्सो अ टर्म, आप चाहें तो इसे गूगल सर्च कर सकते हैं। इवन अ ट्रैवल डायरी एंट्री आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ईमेल करें विद ऑल द रेलेवेंट पिक्चर्स। हाँ, तो उसमें पूरी आपकी स्टोरी आ जाएगी जो आपने मुझे भेजी है वाया ईमेल। एग्जाम्पल, मैं शिमला गया था, मैंने वहाँ घूमा फिरा, मैंने ये प्लेसेस विजिट की, मैंने यहाँ पर शिमला के साथ मैं कुफरी गया, फिर वहाँ पे मैंने है ना हॉर्स राइडिंग की। तो ऐसे करके आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप किस होटल में रुके, वो होटल की सर्विसेज कैसी थी, ऑल योर फीडबैक रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, ऑल योर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। मैंने यहाँ पर है ना खाना खाया, यहाँ पे मैंने लंच किया, इसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी, यहाँ पर वेजिटेरियन फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ पे चाट अच्छा मिलता है, यहाँ पे स्नैक्स अच्छे मिलते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट हैज़ टू बी समड अप इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट विथ ऑल द रेलेवेंट पिक्चर्स। आप मुझे भेजेंगे, मैं उसको 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करूँगी विथ ऑल द क्रेडिट्स टू यू। उसमें नीचे नाम आ जाएगा कि दिस blog was written by XYZ person. These are the social media handle. ये उनका फेसबुक है, ये उनका इंस्टाग्राम लिंक है, यहाँ पर जाएं, आप इन्हें फॉलो करें। आपको लगता है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, वेल एंड गुड। उसके साथ साथ आप वेबसाइट पे भी कंटेंट अपलोड करवाइए। जो वेबसाइट पे विजिटर्स हैं आपका कंटेंट पढ़ेंगे, आपका पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद वो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको फॉलो करेंगे। सो इट्स लाइक वी आर गोइंग टुगेदर, वी आर ग्रोइंग टुगेदर एंड वी विल बी टुगेदर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल ट्रैवल सीरीज बाय राशि उपाध्याय। उसमें ब्लॉगिंग टिप्स हैं, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। रियल ट्रैवल स्टोरीज हैं, 1 story is uploaded, you can send me yours and let us grow together. So this was all about travel series by राशि उपाध्याय। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे भी लाइक करें, फॉलो करें। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन, बाय बाय।